سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ایف بی آر کو اربوں روپے کی گاڑیاں خریدنے سے روک دیا۔ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں 1000 گاڑیاں ایف بی آر کس لیے خرید رہا ہے؟ کیا پہلے فیلڈ آفیسر سائیکل پر جاتے تھے؟ وزارت خزانہ حکام نے کہا یہ گاڑیاں فیلڈ افسران کے لیے خریدی جا رہی ہیں۔ کمیٹی اراکین ایف بی آر حکام پر برہم۔ فیصل وارڈا نے کہا کہ ایف بی آر مخصوص کمپنیوں سے گاڑیاں خرید رہی ہے، وہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں جن کی مینٹیننس کم ہے، کھانچے والا کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا کیا سکینڈل ہوگا؟ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے۔ کرپشن کا غار کھولا گیا ہے کہ ایف بی آر کا ٹیکس گیپ پورا کرنے کے لیے خریدی جا رہی ہیں۔ اس کو فی الحال روکا جائے، پھر کمپٹیشن کے ذریعے خریداری کی بات کی جائے۔ کمیٹی نے گاڑیوں کی خریداری روکنے کی ہدایات بھی کی ہیں۔ سینیٹر فیصل وارڈا نے قائمہ کمیٹی خزانہ کا گاڑیوں کی خریداری روکنے کا فیصلہ خوشائن قرار دیا۔ کہا پہلی حکومت میں بہت سی چیزوں کو روکا، اب بھی روکیں گے۔ پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ ایف بی آر کو 384 ارب روپے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا ہے۔ اس کی شاباشی میں یہ کام ہو رہا ہے، بہت کام کیا، یہ تو گاڑیاں دلا دے۔ فیصل وارڈا نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے اپنی حکومت میں چیزیں روکی ہیں، اب بھی روکیں گے۔ پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ 384 ارب روپے ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے جو انہوں نے اچیو نہیں کیا، اس کی شاباشی میں، کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا، اس کی شاباشی میں ہم 6 بلین کی گاڑیاں دلا دیں۔ اسامہ ستی قاتل کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجرمان افتخار احمد اور محمد مصطفیٰ کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ مجرمان سعید احمد، شکیل احمد اور مدثر مختار کو کیس سے بری کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ 5 ملزمان نے اسامہ ستی کیس میں سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ مزید آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ اسامہ ستی قتل کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کا اجلاس۔ کمیٹی میں حکومت کا مجوزہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 کا ایجنڈا زیر غور۔ وزیر مملکت شہزہ فاطمہ نے کہا بل میں کچھ ترامیم لائی گئی ہیں، ترمیم شدہ بل تمام ارکان کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی ممبر عمر ایوب کہتے ہیں شارک مچھلیوں نے کاٹ کاٹ کر انٹرنیٹ کیبل کا ستیہ ناش کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جب جلسہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ سست کر دی جاتی ہے، ہم بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ کمیٹی ممبر عمیر نیاسی نے کہا اتنی جلد بازی نہ کریں، تحفظات ہمارے دور کریں۔ بیسٹر گوہر نے پوچھا آخر ڈیجیٹل کمیشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جس پر شہزہ فاطمہ نے بتایا اگر رشوت کو ختم کرنا اور نظام میں شفافیت لانے ہے تو ڈیجیٹل ہونا پڑے گا۔ قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام نے ڈیجیٹل نیشن پروگرام جو ہے وہ پاکستان کا بل 2024 منظور کر لیا۔ اب ہوتا ہے امین الحق کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کا اجلاس۔ اجلاس میں مجوزہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 منظور کر لیا گیا۔ بل میں کچھ ترامیم لائی گئی، وزیر مملکت شہزہ فاطمہ کا ایسا کہنا تھا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے وضاحت کی کہ الیکشن کمیشن کا کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کا تاثر حقائق کے برعکس ہے۔ الیکشن کمیشن نے عادل باسئی ممبر قومی اسمبلی کے نااہلی کے اپنے فیصلے کو دوبارہ ویب سائٹ پر آویزہ کر دیا۔ آئین کا آرٹیکل 63(3)A الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے ڈکلریشن کی وصولی کے 30 دن کے اندر اس پر فیصلہ کرے۔ بیان حلفی 18 فروری 2024 کو الیکشن کمیشن کو موصول ہوا۔ عادل باسئی کی نون لیگ میں شمولیت کی منظوری الیکشن کمیشن نے 19 فروری 2024 کو دیا اور قومی اسمبلی کو 25 اپریل 2024 کو مطلع کیا۔ قومی اسمبلی نے ممبران کی پارٹی وابستگی فہرست اپنی ویب سائٹ پر آویزہ کر دی، جس میں سلسلہ نمبر 256 پر عادل باسئی کا نام مسلم لیگ نون سے وابستگی کے ساتھ موجود تھا۔ اے بی این نیوز برلن میں تعینات پاکستانی سفیر سکلین سعیدہ کی جانب سے سفارتی عملے کو غیر قانونی قیام کے اجازت کے مزید شواہد سامنے لے آیا ہے۔ برلن سفارت خانے کے آفیسر نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ سفیر سکلین سعیدہ پر سنگین الزامات عائد ہیں۔ برلن میں تعینات پاکستانی سفیر سکلین سعیدہ کی بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں بے نقاب۔ غیر قانونی رہائش پذیر ریٹائر ملازم کا نام بھی سامنے آ گیا۔ رضوان عباسی مزید بتائیں گے۔ رضوان بتائے گا، اے بی این نیوز خبر سامنے لے آیا ہے۔ دیکھیں پاکستانی سفیر جو برلن میں تعینات ہیں سکلین سعیدہ، ان پر جرمنی کے جو امیگریشن قوانین ہیں اور ویانا کنونشن ہے اس کی کھلی خلاف ورزی سامنے آئی ہے۔ سفارت خانے کے ایک اعلیٰ افسر کی جانب سے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں انکشاف ہوا ہے کہ سفیر نے ریٹائرڈ آفیسر یاسمین بیگ اور ان کے جو اہل خانہ ہیں
उनको गैर कानूनी क्याम की इजाजत दी है जर्मनी में, और जिससे जो सफारत खाना है उसमें हलचल मच चुकी है। ज़राए ने यह भी बताया है कि रिटायर्ड ऑफिसर यास्मीन बेग की वतन वापसी में गैर कानूनी जो ताखीर है और उनके जो खानदान के जो क्याम है उसकी इजाजत जो सफीर हैं सकलैन सईदा उन्होंने दी है, जिस पर सफारत खाने का जो अमला है उसने काफी तहफ़्ज़ात का इजहार भी किया है। इन इकदाम को इंसानी स्मगलिंग के जुमरे में भी शुमार किया जा रहा है, ऐसा कहना था जो खत लिखा गया है एक आला ऑफिसर की जानिब से, और जिसे पाकिस्तान और जर्मनी के जो तल्लुकात हैं जिसमें फैमिली वीजाज हैं, जिसमें स्टूडेंट वीजाज हैं, वो भी मुतासर होने का अंदेशा है। सफीर सकलैन सईदा पर वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 और मेजबान मुल्क के जो कवानीन है उनकी पामाली का जो इल्जाम है वो उस खत में भी आयद किया गया, और सफारती ज़राए के मुताबिक इस गैर कानूनी क्याम के बाइस जो दिगर जो मामलात हैं जर्मनी के साथ, बर्लिन के साथ, पाकिस्तान के, वो भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और सफीर की जो नाकस हिकमत अमली है जर्मनी के इमिग्रेशन कानून की जो खिलाफ वर्जी है, ये अक्टूबर 2024 में एक बात काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म ने जब जर्मनी का दौरा किया था उस वक्त जो मनसूबा बंदी की गई थी उनके दौरे की, तो उस पर भी काफी तनकीद की जा रही है। तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। बर्लिन में तैनात पाकिस्तानी सफीर के हवाले से संगीन इल्जामात सामने आ गए। बहुत शुक्रिया रिजवान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के 39 रुकनी वफ़द ने एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब की सरबराही में मुलाकात की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक सरजमीन की फिजाओं के मुहाफ़िज़ों और निगहबानों से मुलाकात बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाक फ़ज़ाओं की निगहबानी के लिए काबिल कदर कारनामे सर अंजाम दिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बेपनाह इज्जत है, प्यार और एहतराम से देखती हूँ। मरीम नवाज ने कहा कि एयरफोर्स के हर तैयारी की फ़्लाइट उम्मीद के साथ उठती है। पाकिस्तान एयरफोर्सेस ने चैलेंजेस का सामना करके अवाम के दिल में जगह बनाई और फ़र्ज़ की हर आवाज़ पर लब्बैक कहा। यूक्रेन, ईरान, इसराइल और दीगर जंगों से एयरफोर्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मरीम नवाज ने कहा कि ट्रेनिंग और डिसिप्लिन से फोर्सेस मज़ीद बुलंद पाया मकाम हासिल कर सकती हैं। पाकिस्तान में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तसलसल बरकरार रहेगा। कौम की हर कामयाबी पर खुशी मुश्तरका है। मुल्क को बुरा भला कहना कतन पसंद नहीं। वतन की बात हो तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए। फैसलाबाद में पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इन रहनुमाओं में कवच शोजब, उमर अशूब, शिबली फराज और फवाद चौधरी शामिल। ये वारंट थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 835 में जारी किए गए, जो 9 मई को पुलिस वैन को नजर आतिश करने के मामले से मुतालिक। इसके अलावा जुनैद अफजल शाही और ख्याल अहमद कासरू ने आज अदालत में पेश होकर नजरसानी की दरख्वास्त दी। जुनैद अफजल शाही ने कहा कि वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे मगर आज अदालत में पेश हो गए हैं। फाजिल अदालत ने इनकी नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला इल्तवा में रखा है। नाकाबिल जमानत वारंट फैसलाबाद की खसूसी अदालत ने जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियार से मुतल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब देने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मुकर्रर करदा अदालती मुआवनीन पर एतराज़ करते हुए कहा, अदालती मुआवनीन ने आईनी तरमीम चैलेंज कर रखी है। अदालत ने एहसन भून और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए, सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपने दायरा इख्तियार देखना चाह रहा है तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नजर अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसलों को पेश किए गए मुकदमा मुकर्रर न करने से मालूम नहीं नजर अब्बास का कितना ताल्लुक। नजर अब्बास साहब, आपके पास भी कुछ हो गया। रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार के दिफा में कहा, ये सब 2 जजेस कमेटी के फैसले से हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया, आपने कॉज लिस्ट से केस को क्यों हटाया था? आप कोशिश करें आज अपना तहरीरी जवाब जमा करा दें। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ओहदे से हटाया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कितने अरसे में कानून साजी का अमल मुकम्मल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, कानून तो पहले से मौजूद, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया तो ट्रायल करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, विफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं वो कहाँ थे? उस पर रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा, बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम उम्मीद ही कर सकते हैं हुकूमत मसला हल किया जाएगा। पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते।
अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ममनुआ बोर असला लाइसेंस के इजरा से मुतालिक आज खुद नोटिस के। अदालत ने ममनुआ बोर असला लाइसेंसों के इजरा से मुतालिक आज खुद नोटिस केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हर शख्स असला लेकर चल रहा है, मुल्क में कत्ल गारत हो रही है, हुकूमत इसको खत्म करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, असला लाइसेंस जारी करने से पहले क्या साइकोलॉजी टेस्ट होता है? दहशतगर्दों के पास बड़े हथियार हैं तो शहरियों ने भी अपनी हिफाजत करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का IPN न्यूज़ से गुफ्तगू में बड़ा बयान। कहा, जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई तजवीज़ गौर नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई गौर हो रहा है। PTI की किसी स्टेज से भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा अप्रोच नहीं रही। PTI वालों ने मशरूत किस्म की बात की है या धमकी दी है। मुज़ाकरात की कामयाबी के एक बुनियादी जुज़ खलूस है। माहौल बनाना चाहते हैं जिससे मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन हों। है जुडिशल कमीशन खास इसलिए क्यों बनाया जाए? ख्याल के कोई गौर हो रहा है। मैं जुडिशल कमीशन बनाना है, मेरा ख्याल है उनका किसी स्टेज से भी मुज़ाकरात के लिए जो है वो संजीदा जो है अप्रोच नहीं रही। उन्होंने एक मशरूत किस्म की बात की है या धमकी दी है, नहीं तो मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे अगर ये ना हुआ। वो 2-3 बातें जो उन्होंने कही हैं। मुज़ाकरात के लिए कामयाबी के लिए एक बुनियादी जो है इंग्रेडिएंट जो है वो खलूस है। मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। माहौल बनाना चाहिए जिससे मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कान जो है रोशन हों। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती कहते हैं PTI की सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात के नाम पर दहशतगर्दों को दोबारा पख्तूनों पर मुसल्लत कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने सवाबी में मुनक्ता जलसे से खिताब करते हुए कहा, 11 सालों से हमारे सूबे में एक मखसूस पार्टी की हुकूमत है। वज़ीरस्तान खुर्रम अहमद और बाचोट में एक बार फिर आग लगी हुई है। मैं सूबे पर मुसल्लत हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि आप इस पर क्यों खामोश हैं? आप अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आला KP ने कहा, ये लोग कहते थे मुल्क को अमरीकी ग़ुलामी से आज़ाद कराएंगे। अब पहले ट्रंप बानी PTI को आज़ाद करेंगे और फिर बानी PTI हमें अमरीकी ग़ुलामी से आज़ाद कराएंगे। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। PTI ने बानी तहरीक इंसाफ की डेडलाइन को मज़ीद सख्त कर दिया। जुडिशल कमीशन के लिए दिया गया वक्त 27 जनवरी को खत्म होगा। आज़राए के मुताबिक PTI हुकूमत की जानिब से 28 जनवरी तक जवाब का इंतजार करेगी। 28 जनवरी तक हुकूमती कमेटी का राब्ता न होने पर मुज़ाकरात खत्म तस्वर होंगे। बानी PTI ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए 31 की डेडलाइन दी थी। PTI के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद कहते हैं, 190 मिलियन केस से हमारा क्या ताल्लुक? ये सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में पड़े पैसे हैं। लाहौर ने साथ दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हमने अपने दौर में अस्पताल बनाने और लोगों को सेहत कार्ड दिए। ये हुकूमत हमारे सेहत कार्ड का ही मुकाबला नहीं कर सकती। स्कर्दू में हमारे दौर में अस्पताल बना, मैंने खुद बनवाया। पार्टी ख़त्म करने की बात करते हैं, हमसे उल हक का मार्शल लॉ भी देखा है। वज़ीर इत्तलात अतातुर्क कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। फैसले को आलमी मीडिया में करप्शन की हेडलाइंस में नशर किया गया। बंद लफाफा काबीना से मंजूरी ली गई, मुल्की पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों की करप्शन की, 5-5 खैरात हीरे की अंगूठियां मांगी गई। दुबई में सरमाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। शहजाद अकबर ने 190 मिलियन पाउंड का पैसा सरकारी कागजात में शो कराया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। अब ये बंद लफाफा कैबिनेट में लाया गया, फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर में ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगना, रोज़ कैश ट्रांजैक्शन करना, 200 कनाल ज़मीन जो है वो रिश्वत में ले लेना। नैब ने कल अवामुन्नास को, पाकिस्तानी अवाम को मुतला किया है कि जो दुबई वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से इन्वेस्ट किया जाएगा उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में लिया पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया। इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर और काबीना को भी यही सबमिट किया कि ये रीपैट्रिएट हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नवाज शरीफ रायपिंड में बैठकर फौज की मॉनिटरिंग बंद करे। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के वुज़रा की फौज को सफ़े आरा कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फ़ौज और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जानों का कीमती नजराना पेश कर रहे हैं। जाली हुकूमती वुज़रा फ़ौज की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ को मालूम है कि मुलाकात में क्या बातचीत हुई है तो फिर वुज़रा औल फोल बयान और वजाहतें क्यों दे रहे हैं। जाली हुकूमत की तवज्जो महंगाई और दहशतगर्दी के खात्मे पर नहीं, आर्मी चीफ की मुलाकातों पर है।